Hello everyone, welcome back to my channel. So today's session in psychological testing chapter, we are going to discuss some personality assessment scales. In our previous session, we have already discussed what is personality and the some types of personality testing, that is a projective, projective techniques, and in which we have discussed your thematic appreciation test, Rorschach-Ink block test, and today we are going to see some another type of scale, that is your MMPI scale, that is the Minnesota Multiphasic Personality Inventory. With the help of this scale, we are going to measure a number of personality dimensions while we identify the personality problem. So according to your personality problem, this scale will help you to overcome with that personality problems. Okay, now MMPI 2, it contains, there are various versions of MMPI. The first is your MMPI 2. This contains 567 questions that you have to complete in 60 to 90 minutes. Time limit was 60 to 90 minutes. And another type of test of MMPI, another version is MMPI 2RF. This contains 338 questions and time takes about 35 to 50 minutes to complete. This scale, MMPI scale, was totally based on your questionnaire patterns. Okay, questionnaire patterns, questions are there, you have to answer in yes or no forms. Okay, now this is scale, there are two types of a scale using this. First is your clinical scale, and next is your validity scale. In clinical scale, we are going to measure some clinical symptoms that are your hypochondriasis, depression, hysteria, paranoia, schizophrenia, mania, social inversion. Okay, now hypochondriasis symptoms जैसे होंगे तो वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, बॉडीली पर्सनालिटी डिसऑर्डर, उसको मेजर करने के लिए MMPI स्केल यूज कर सकते हैं हम. डिप्रेशन अगर किसी को ज़्यादा है तो उसको मेजर करने के लिए, उस पर्सनालिटी को मेजर करने के लिए वी आर गोइंग टू use the MMPI scale. Second is your hysteria. Hysteria भी एक तरह का जो personality disorders है, hysteria conversion disorder was there. जैसे hysteria में आप लोगों ने देखा होगा कि एक personality disorder ही है जो कि जैसे लोग बोलते हैं कि किसी के ऊपर भगवान आ गया, कोई अलग अलग टाइप के unusual behavior कर रहा है. आप लोगों ने देखा होगा कि किसी के अंदर देवी आ गई, किसी के अंदर, दिस आर नथिंग बट अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. तो इस टाइप के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, लाइक इसको बोलते हैं हिस्टीरिया कन्वर्जन डिसऑर्डर. तो इस टाइप के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को मेजर करने के लिए भी MMPI स्केल इज वेरी यूजफुल. ओके, now the paranoia personality disorders and schizophrenia. schizophrenia में क्या होता है? schizophrenia में ऐसा लगता है कि एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, ये कोई दो पर्सन बीच में बात कर रहे हैं तो जो तीसरा देख रहा है लग रहा है उसको कि मेरे बारे में ही बोला जा रहा है, यानी कि एक डाउटफुल पर्सनैलिटी उसके अंदर में डेवलप करती है. ये है schizophrenia. हम इन सब डिजीज को वन बाय वन फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे, तो अपने जो फर्दर क्लासेस होंगे वो वेरी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं. सो प्लीज कीप वॉचिंग. ओके, ना मैनिया क्या होता है? मैनिया पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में बहुत ही ज़्यादा खुशी हो जाती है. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. सोशल इंट्रोवर्शन. तो इस टाइप के स्केल्स, इस टाइप के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को मेजर करने के लिए कौन से स्केल है? MMPI स्केल. ठीक है, और नाउ द नेक्स्ट स्केल इज योर वैलिडिटी स्केल. वैलिडिटी स्केल क्या मेजर करता है? योर लाई डिसऑर्डर, योर कैनॉट से, infrequency, back F, defensiveness and true response. These types of validities are you going to measure with the help of your personality scale, that is your MMPI, that's known as the Minnesota Multiphasic Personality Disorder. Okay, now the next type of a scale is used for measuring your personality disorder, that is your Millian Clinical Multi-Axial Inventory. Okay, this scale was created by Theodore Millian, Seth Grossman and Carey Millian. And your for MCMI, that is your Millian Clinical Multi-Axial Inventory का अभी जो लेटेस्ट वर्जन है, that is your fourth version, is your latest edition. और इसमें क्या होता है? In this you are having a 195 true and false questions are there, and you have to complete this question in 25 to 30 minutes. Okay, and this intended for adult
18 and over with at least 5 grade reading levels who currently seeking the mental health service। तो मेंटल हेल्थ जो ऑलरेडी मेंटल हेल्थ सर्विस ले रहे हैं ये उनके लिए ये स्केल है NCMI। ये जनरल पर्सनालिटी जनरल पर्सन्स के लिए ये स्केल नहीं बना है। जो ऑलरेडी ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं जिसको ऑलरेडी प्रॉब्लम है उनके लिए ये स्केल बना है, दैट इज योर मिलियन क्लिनिकल मल्टी एक्सेल इन्वेंट्री। एंड अभी जो वर्जन चल रहा है दैट इज योर 4th वर्जन वाज रनिंग ऑन दिस। इसमें कोई लाइव स्केल नहीं होता है एंड दिस स्केल इज कैटेगराइज इन 4 कैटेगरी स्केल, जिसमें कि 15 पर्सनैलिटी पैटर्न स्केल होता है, 10 क्लिनिकल सिंड्रोम स्केल होता है, जिसमें 7 क्लिनिकल सिंड्रोम जो होता है वो जनरल क्लिनिकल सिंड्रोम एंड 3 जो होता है आपका सीवियर क्लिनिकल सिंड्रोम पे है। तो 7 क्लिनिकल सिंड्रोम क्या है आपका, A to R होता है दैट इज ए जनरलाइज्ड एंजाइटी, यानी जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए काम करता है। सेकंड इज ए सोमैटिक सिंड्रोम, यानी कि बॉडीली रिलेटेड कोई सिंड्रोम है उससे। बाइपोलर डिसऑर्डर ऑफ 2 टाइप दैट इज अ मेनिया एंड योर हाइपोमेनिया। ठीक है, मेनिया होता है एक, बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है 2 टाइप ऑफ पर्सनैलिटी होता है। कभी तो वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, कभी बहुत ही ज़्यादा अचानक ही ऐसा होता है कि वो बोलते बोलते बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। तो एक ही पर्सन के अंदर में 2 टाइप ऑफ डिसऑर्डर होते हैं, उसको बोलते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। नाउ द सेकंड नेक्स्ट इज योर पर्सिस्टेंट डिप्रेशन। देन अल्कोहल जो यूज़ करते हैं उनके लिए भी ये स्केल है, ड्रग यूज़ के लिए एंड PTSD के लिए, दैट इज योर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लिए। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर क्या है, कोई एक इंसिडेंस हुआ है और उस इंसिडेंस को लेकर के आपके अंदर में कुछ सिंड्रोम्स आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आर्मी पर्सन है, आर्मी पर्सन के जब वो बॉर्डर पे जाते हैं, लड़ाई होती है तो उनको तो एक्चुअली ऐसे प्रिपेयर ही किया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स है कि कोई क्लोज उनके फ्रेंड है उनकी डेथ हो जाती है उनके सामने में, तो वो उस चीज़ से ऊपर नहीं आ पाते हैं। तो उनके अंदर में वो चीज़ें जो है वो जो इंसिडेंट्स है वो बार बार उनको ट्रिगर करता है। तो दैट इज़ योर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। और इसका अनदर एग्जांपल है, जैसे कोई कार से हम जा रहे हैं, कार से हमारा किसी का कार से एक्सीडेंट हो गया तो वो जो है एक ट्रॉमा बैठ जाता है ब्रेन में, एक ट्रॉमा बैठ जाता है कि फिर से तो ऐसा एक्सीडेंट नहीं होगा। उसी वजह से उनको क्या होता है, एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आ जाता है जिसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। मीन्स दैट आपका जो ये इंसिडेंस हुआ है, ये ट्रॉमा हुआ है, ये बार बार आपके ब्रेन को ट्रिगर कर रहा है, आपकी पर्सनैलिटी को ट्रिगर कर रहा है, जिसकी वजह से आपका जो ये इंसिडेंस हुआ है ये एक डिसऑर्डर का फॉर्म ले रहा है, आपको फोबिया हो जा रहा है, इससे आप उस चीज़ से डर रहे हो, तो दिस इज योर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो इस टाइप के सिंड्रोम्स में भी हम ये 10 क्लिनिकल सिंड्रोम स्केल जो NCMI है वो हम यूज़ करते हैं। और इसका जो 3 सीवियर क्लिनिकल सिंड्रोम है वो क्या है आपका, थॉट डिसऑर्डर हो गया, बहुत ही ज़्यादा थॉट डिसऑर्डर है, आप सोच ही नहीं पा रहे हो, आप हर चीज़ नेगेटिव सोच रहे हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर में है। एंड मेजर डिप्रेशन, डिल्यूजन डिसऑर्डर, ठीक है, डिल्यूजन डिसऑर्डर, डिल्यूजन में आप कोई भी चीज़ को देख रहे हो, रोप को देख रहे हो तो आपको क्या हो रहा है, डिल्यूजन हो रहा है कि वह स्नेक है, आप क्लाउड देख रहे हो तो सोच रहे हो ऊपर से कुछ गिर रहा है, तो इस टाइप ऑफ डिल्यूजन वो हो रहा है। तो दिस टाइप सिंड्रोम ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर डिसऑर्डर है। तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, आपका NCMI clinical multi-axial inventory scales. Okay, now the third category of this scale is divided in 10। इसमें से 5 क्या है, 5 वैलिडिटी स्केल पे डिपेंडेंट, 3 मॉडिफाइड इंडिसेस पे एंड 2 रैंडम रिस्पॉन्स ऑफ इंडिकेटर पे डिपेंडेंट। एंड द 4th कैटेगरी इसमें क्या है, 45 ग्रॉसमैन पर्सनैलिटी फेशियल स्केल। ठीक है, तो दिस स्केल NCMI मिलियन क्लिनिकल मल्टी एक्सियल इन्वेंट्री वाज डिवाइडेड इन 4 कैटेगरी स्केल, जिसमें कि फर्स्ट है आपका 15 पर्सनैलिटी पैटर्न स्केल, 10 क्लिनिकल सिंड्रोम स्केल जिसमें 7 क्लिनिकल डिसऑर्डर है एंड 3 सीवियर क्लिनिकल डिसऑर्डर पे बेस्ड है। एंड अनदर नेक्स्ट 10 स्केल जो है वो 3 में डिवाइड है, दैट इज योर 5 validity scale, 3 modified indices and 2 random response indicator and the next 45 Grossman personality facial scale. तो ये these are the 4 category of your NCMI. Okay.
That's all for today. I hope you all understand today's lecture very well. Today we have discussed the two type of a scale, that is your the Minnesota multiphasic personality inventory and the Millian clinical multi-axial inventory. Both the scale are used for testing your personality, and both the scale are based on your clinical syndromes. Okay, so that's all for today. Again, we are going to discuss the another type of personality disorder scale. There are various types of personality disorder scale. We are going to do, and we deal with one by one all of them. Okay, so I hope you all like today's session very much. So thank you so much. Take very good care of yourself, and please do like, share and subscribe my channel so that I will provide you more and more information in a very compact way. Okay, thank you so much.